ज़करिया 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। ज़करिया 9, 10, 11। पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। वचन हम खो ना जाए पिता, हमारे अंदर वो बैठा रहे और हमारे जीवन को बदलता जाए। परमेश्वर के अधीन आने के लिए हमारी सहायता कर पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन। Chapter 9. God defends his church. Zion exalted to rejoice for the coming of Christ. First verse say, the burden of the word of the Lord in the land of Hadrach and Damascus shall be the rest thereof, when the eyes of man as of all the tribes of Israel shall be toward the Lord, and Hamath also shall border thereby. Tyrus and Zidon, though it be very wise, and Tyrus did build herself a stronghold, and heaped up silver, the dust, and fine gold, as the mire of the streets. Behold, the Lord will cast her out, and he will smite her power in the sea, and she shall be devoured with fire. Ashkelon shall see it and fear. Gaza also shall see it and be very sorrowful, and Ekron for her expectation shall be ashamed, and the king shall perish from Gaza, and Ashkelon shall not be inhabited, and a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines, and I will take away his blood out of his mouth, and his abominations from between his teeth, but he that remaineth, even he shall be for our God, and he shall be as a governor in Judah, and Ekron as a Jebusite. And I will encamp about mine house because of the army, because of him that passeth by, and because of him that returneth, and no oppressor shall pass through them any more. For now have I seen with mine eyes. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly, and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. As for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee, when I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man. And the Lord shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning, and the Lord God shall blow the trumpet, and shall go with the whirlwinds of the south. The Lord of hosts shall defend them, and they shall devour and subdue with sledge stones, and they shall drink and make a noise as through wine, and they shall be filled like bowls, and as the corners of the altar. And the Lord their God shall save them in that day as the flock of his people, for they shall be as the stones of a crown, lifted up as an ensign upon his land. For how great is his goodness, and how great is his beauty! Corn shall make the young men cheerful, and new wine the maids. Chapter 10. God to be sought with, and not idols. As he visited his flock for sin, so will he save and restore them.
First verse, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams. They comfort in vain, therefore they went their way as a flock. They were troubled because there was no shepherd. Mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats, for the Lord of hosts hath visited his flock, the house of Judah, and hath made them as his goodly horse in the battle. Out of him came forth the corner, out of him the nail, out of him the battle bow, out of him every oppressor together. And they shall be as mighty men which tread down their enemies in the mire of the streets in the battle, and they shall fight because the Lord is with them. And the riders of horses shall be confounded. And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them again to place them. For I have mercy upon them, and they shall be as though I had not cast them off. For I am the Lord their God, and will hear them. And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their heart shall rejoice as through wine. Yea, their children shall see it and be glad, their heart shall rejoice in the Lord. I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them, and they shall increase as they have increased. And I will sow them among the people, and they shall remember me in far countries. And they shall live with their children and turn again. And I will bring them again also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria. And I will bring them into the land of Gilead and Lebanon, and place shall not be found for them. And he shall pass through the sea with affliction, and shall smite the waves in the sea, and all the deeps of the river shall dry up, and the pride of Assyria shall be brought down, and the scepter of Egypt shall depart away. And I will strengthen them in the Lord, and they shall walk up and down in his name, saith the Lord. Chapter 11. Destruction of Jerusalem. By a type is shown Christ's care for his flock. First verse, open thy doors, O Lebanon, that the fire may devour thy cedars. Howl, fir tree, for the cedar is fallen, because the mighty are spoiled. Howl, O ye oaks of Bashan, for the forest of the vintage is come down. There is a voice of the howling of the shepherds, for their glory is spoiled, a voice of the roaring of young lions, for the pride of Jordan is spoiled. Thus saith the Lord my God, feed the flock of the slaughter, whose possessors slay them and hold themselves not guilty. They that sell them say, Blessed be the Lord, for I am rich, and their own shepherds pity them not. For I will no more pity the inhabitants of the land, saith the Lord, but lo, I will deliver the men every one into his neighbor's hand, and into the hand of his king, and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them. And I will feed the flock of slaughter, even you, O poor of the flock. And I took unto me 2 staves, the one I called beauty, and the other I called bands, and I fed the flock. 3 shepherds also I cut off in 1 month, and my soul loathed them, and their soul also abhorred me. Then said I will not feed you. That dieth, let it die, and that is to be cut off, let it be cut off, and let the rest eat every one the flesh of another. And I took my staff, even
beauty and cut it asunder, that I might break my covenant which I had made with all the people. It was broken in that day, and so the poor of the flock that waited upon me knew that it was the word of the Lord. And I said unto them, If ye think good, give me my price, and if not, forbear. So they weighed for my price 30 pieces of silver. And the Lord said unto me, Cast it unto the potter a goodly price that I was prized at of them. And I took the 30 pieces of silver and cast them to the potter in the house of the Lord. Then I cut asunder mine other staff, even bands, that I might break the brotherhood between Judah and Israel. And the Lord said unto me, Take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd, for lo, I will raise up a shepherd in the land, which shall not visit those that be cut off, neither shall seek the young one, nor heal that is broken, nor feed that standeth still, but he shall eat the flesh of the fat, and tear their claws in pieces. Woe to the idle shepherd that leaveth the flock, the sword shall be upon his arm and upon his right eye. His arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened. हम इसी अध्यायों को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. Ridan zigel razias ko uzas kian zoriasan leg do ridal e zedin iro oziase zehet kian eriazo led go ridan e. जकरिया 9, 10, 11 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. पड़ोसी राज्यों का न्याय. 9 अध्याय पहले वचन से. हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है. हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है. सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है. देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा. यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और गाजा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी. अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे. इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गांव को तोड़ूंगा. मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा. तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे. तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ. सियोन का आगामी राजा. 9 वचन से आगे. हे सियोन, बहुत ही मगन हो. हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है. वह दीन है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा. वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा. परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा. 11 वचन से आगे. तो भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है.
हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पाँव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। 16 वचन से आगे, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियों जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। 10 अध्याय छुटकारे की प्रतिज्ञा। पहले वचन से, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनके सुन लूंगा। अप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वे समा न सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अत्याचारियों का पतन। 11 अध्याय पहले वचन से, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोबरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। 2 चरवाहे। 4 वचन से आगे, मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी,
घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूँगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश का नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को उनके वश में से न छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा। मैं तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, और जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं, वह उसी दिन तोड़ी गई। और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तो मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर पितर की इकट्ठा करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। पवित्र आत्मा हमें जो अभी पढ़ा जकरिया के वचनों को, पिता हमें रहस्य भेद समझाकर उसके अंदर के हर एक हिस्से में आज्ञा पालन करा, जो हमें परमेश्वर फिट एंड फिक्स होना ज़रूरी है। उन वचनों के आधार से हमें फिट एंड फिक्स कर और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 4 चैप्टर 23 वर्स से 37 वर्स, एजरा 7 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 वचन से 37 वचन, एजरा की पुस्तक 7 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ेंगे। ये हमारा फैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन हमको सुधार लाता है, हमारे अंदर के हर एक बातों को वो गहराई से हमें बताता है और हम में बदलाव लाता है, वो हम चाहते हैं कि हमारा बदलाव हो। लेकिन आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप इसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि हम जैसे भी पढ़े, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करना है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हमें वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।